Hi everyone. In last lecture, we will start it with unit number 1, that is a linear differential equation, and we discussed some definition about the differential equation and some rules to find the complementary function. So I already give the idea about the complementary function, particular integral, and how to find the complementary function. So in today's lecture, we will discuss about the complementary function and we solve some example based upon the complementary function in details. So we just revise the rules which are I told you yesterday. So first, what is the procedure we have to follow to find the complementary function? So suppose we have a differential equation of these steps: d2y by dx square plus py is equal to q, or this q as considered as f of x, or we consider as x. So suppose this is a differential equation and we have to find the solution of this differential equation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप तो ये है कि इस इक्वेशन को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सो हम करेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न इन सिंबॉलिक फॉर्म एज. तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है? इफ देर इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव then you have to write d. If there is a second derivative, then d square, third derivative, then d cube, and so on. So by using this equation, here the second derivative is present, we write as d square of y plus py is equal to, suppose this is f of x or x. So this can be written as d square plus py is equal to f of x. So this is a symbolic form of this equation. Now, next step is we have to write the homogeneous equation or auxiliary equation. So the auxiliary equation is given by. So how to write the auxiliary equation? First of all, whenever we have to find the complementary function, first put right hand side is equal to 0. Means whatever the value of the function f of x, you always consider that f of x equal to 0 for finding the complementary function. So this can be written as d square plus p into y is equal to 0, and dividing by y we get d square plus p is equal to 0. So this equation is said to be auxiliary equation. Now, depending upon the nature of the equation, we have to find the roots of equation. So how many roots are there? Roots equal to number of, or the roots equal to order of equation. Equation has order 2, therefore it has a 2 roots. And जो रूट होंगे वो दो टाइप के होंगे. एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए जो हमने कल केसेस देखे थे, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर इमेजिनरी. तो ये जो रूट्स है ये जो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इट इज कॉम्प्लेक्स होंगे. कॉम्प्लेक्स होंगे मतलब क्या होगा? उसमें आई आएगा. और अगर रूट्स रियल होंगे तो उसमें आय नहीं आएगा. तो इसमें केसेस बनेंगे रूट्स आर रियल. तो रियल में दो केसेस होंगे, रियल एंड डिफरेंट. तो सपोज अगर आपने दो रूट्स निकाले, एक रूट्स आ गया m1 और एक रूट्स आ गया m2.
और दोनों इसमें क्या है, दोनों रियल है लेकिन सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है। तो इसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ ये इक्वेशन याद करना है, c⁴mx। उसके बाद जितने रूट्स है उतने बार वो इक्वेशन लिखना है। तो देयर आर द 2 रूट्स, तो ये इक्वेशन जो है हम इसको 2 बार लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। c एंड c मस्ट बी डिफरेंट, तो एक को बोलेंगे c1, एक को बोलेंगे c2, एंड दिस इज m1, दिस इज m2। तो लास्ट में क्या करेंगे, सपोज m1 की वैल्यू अगर 2 है और m2 की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 और 1 पुट कर देंगे। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी, रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स रियल है और इक्वल है। मतलब सपोज इस कंडीशन में d इक्वल टू पहला रूट्स आपका m1 है और दूसरा रूट्स भी आपका m1 में आएगा, मतलब दोनों रूट्स क्या है, सेम है। इसके लिए भी हम सब वैसे ही करेंगे। मैंने बोला आपको 2 रूट्स है तो 2 बार फंक्शन लिख लो, c⁴mx, c⁴mx प्लस कर देंगे। अभी यहाँ पे इसको c1 बोल दिया, यहाँ पे इसको c2 बोल दिया। अभी यहाँ पे देखिए m1 तो m1 ही है, लेकिन यहाँ पर भी कितना है, m1 है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन सेम ही हो जाएगा, क्योंकि c1 c2 सेम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए टू अवॉइड दिस, अगर कोई रूट्स रिपीट होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आपको x लिखना पड़ेगा, और दोनों को अगर हम अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा c1 प्लस c2x इंटू e⁴m1x। So this is a condition to find when the roots are real and equal. नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में भी अगेन होगा इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, और दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी, इमेजिनरी एंड इक्वल। तो एक बार अभी ध्यान में रखो आप कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द इमेजिनरी रूट, द इमेजिनरी रूट ऑलवेज कम्स इन अ पेयर। मतलब इमेजिनरी रूट्स अगर आएंगे तो वो इस पेयर में आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो अगर आप डी की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसका मीनिंग क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट हो गया और अल्फा माइनस आई बीटा ये एक रूट हो गया। मतलब अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो आपको यही रूट्स मिलेगा। और इक्वल में क्या आएगा, डी की वैल्यू कैसे आएंगे आपकी, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगेन यही वैल्यू रिपीट आ जाएगी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो बहुत ही रेयरली ये केस यूज होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये 2 और ये 2 मतलब 4 रूट्स होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी, 4th ऑर्डर होगी। तो जनरली 2 रूट्स का नेचर ये रहेगा। तो इसके लिए आपको जो फार्मूला यूज करना है वो करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका होगा e⁴ c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x। तो ये फार्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अल्फा मतलब रियल पार्ट, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, और बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। और अगर ये इक्वल हो गए मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज रिपीट होगी। तो यहाँ पर इक्वल के लिए जो हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज किया है वही कंसेप्ट यूज करना है। तो कंसेप्ट इस टाइप में लिखना है आपको, e⁴ अल्फा अल्फा तो सेम है, तो ये दोनों को कॉमन रहेगा, और बाद में इस ब्रैकेट में कॉस बीटा एक्स भी कॉमन रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन बीटा एक्स भी कॉमन रहेगा। देखिए यहाँ पर e⁴ एज इट इज है, कॉस बीटा एक्स एज इट इज है, साइन बीटा एक्स एज इट इज है। बीच में जो c1 है, तो यहाँ पर ये रूट्स रिपीट हो गया, तो यहाँ पर रिपीट होने के लिए क्या करते हैं हम, c1 प्लस c2x, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, cx। तो c1 और c2 हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो यहाँ पर c3 और c4 लेंगे हम। और सपोज अगर ये रूट्स अगर 3 बार रिपीट हो गया, मतलब हमको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगेन अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगेन अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिल गया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये टर्म आपको और एक्सटेंड करनी पड़ेगी। मतलब यहां पर जैसे c1 प्लस c2x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c3x² आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमने कल देखा था, एक बार उसको रिपीट कर दिया, एक बार और मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर किसी भी
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमका उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहेंगी उसकी जगह पे 0 रखना है और y को डिवाइड करके उसको एलिमिनेट करना है। तो जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, जैसे कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं आप, या कैलसी पे भी कर सकते हैं। कैलसी पे अगर आप इक्वेशन डालेंगे तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन रूट्स कितने होंगे, जितनी इसकी पावर है। अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इसके 2 रूट्स होंगे, थर्ड ऑर्डर है तो इसके 3 रूट्स होंगे, फोर्थ ऑर्डर है तो इसके 4 रूट रहेंगे। तो जितने रूट्स है उतने आपको पहले निकालना है। बाद में सब कुछ डिपेंड क्या करेगा कि उस रूट्स का क्या नेचर है। तो रूट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो रियल होंगे, जैसे हम हाई स्कूल से पढ़ते हैं रियल नंबर 1 2 3 -1 -2 दिस ऑल द रियल नंबर। और फर्स्ट ईयर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा था कि जिसमें आई आता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो ऐसे 2 टाइप के रूट होते। तो पहले केस है रूट्स आर रियल। रियल में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, रियल होंगे, सपोज मुझे अगर 2 रूट्स मिल गए तो रियल होंगे तो एक 1 होगा, एक 2 होगा, या अलग कुछ होगा। मतलब दोनों रियल तो रहेंगे लेकिन डिस्टिंग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों रूट्स अगर मुझे मिले रियल लेकिन वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहां पर इस कंडीशन में तो अगर डिस्टिंग है तो क्या करना है आपको, c⁴mx का फंक्शन याद रखना है। 2 रूट से तो 2 बार लिखना है, 3 रूट से तो 3 बार लिखना है। बाद में c अलग अलग चाहिए हमको, तो c1 c2 c3 वहां पे नाम दे देना और बाद में m1 m2 की वैल्यू रिप्लेस कर देना। m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन है रियल और इक्वल होंगे तो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे तो क्या करना है, वैसी कंडीशन यूज करना है, c⁴mx c1 c2 दे दिए, m1 m1 दे दिए। एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर m1 और m2 अलग अलग वैल्यूज है, तो ये e⁴ और e⁴ ये डिफरेंट टर्म होगी, डिस्टिंक्ट टर्म होगी, तो इसलिए बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये सेम टर्म मिल जाएंगे आपको। और सेम टर्म मिलने के बाद अगर c को आप सेम लेते हैं तो ये एक ही फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए टू अवॉइड दिस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक x देना है। यहाँ पर x देने के बाद e⁴mx को कॉमन निकालेंगे हम, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। 3 रूट्स अगर आते हैं तो यहाँ पे थर्ड टर्म c3 आएगा, तो यहाँ पर x है तो उसके बाद एक x का पावर और इंक्रीज कर दो, मतलब x² आ जाएगा। तो बाय यूजिंग सिमिलर वेज वी कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द इक्वेशन विच हैज द nth नंबर ऑफ रूट्स। दूसरी कंडीशन क्या रहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी होने के लिए हमारे पास अगेन 2 कंडीशन है। लेकिन इमेजिनरी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी रूट्स कभी अकेला नहीं आएगा, वो एक साथ लेके आता है, मतलब पेयर में आता है। तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म में, मतलब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 रूट्स होंगे। तो इक्वेशन के ऑर्डर अगर 2 है तो यहाँ पे 2 ही होंगी। अगर इस टाइप के आते हैं आपको तो इसके ऑर्डर 4 होंगी कम से कम, क्योंकि 4 रूट्स है यहाँ पर। तो ये रूट्स में क्या करना है आपको, ये फार्मूला याद रखना है, e⁴ c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर सपोज ये वैल्यूज अगर 4 रूट्स है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट आ गए, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस आई बीटा, तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, e⁴ एल चीज रखेंगे, सब इसको मल्टीप्लाई है, cos बीटा x पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और sin बीटा x सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है। इसके अंदर क्या आएगा, रिपीट्स है ना, तो रिपीट्स के लिए क्या आता है c1 प्लस c2x। यहाँ पर भी क्या आएगा c1 प्लस c2x, लेकिन c1 और c2 हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो इसके बाद क्या आएगा c3 और c4। अगर 3 पेयर आएंगे तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो जाएंगी c3x² और यहाँ पर फिर c4 c5 और यहाँ पर आएगा c6x²। तो इस टाइप में चैप्टर एंड होने तक जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तब तक हमको ये चारों केस यूज करना है। एक तो रियल के लिए होगा तो 2 केसेस आएंगे और इमेजिनरी के लिए होगा तो ये 2 केसेस आएंगे। तो इस टाइप का हम किसी भी प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दैट वी टेक सम एग्जांपल वेयर वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। So example number 1, solve d²
प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन का फॉर्म आपको किस फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू इधर कुछ भी रहेगा x। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, सोल्यूशन क्या रहता, कंप्लीट सोल्यूशन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो यहाँ पे जीरो करने के बाद जो सोल्यूशन मिलता है वो CF रहता, और इसका यूज करके जो आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। और हमने एक नोट भी ली थी कि अगर इधर की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कोई टर्म भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी राइट हैंड साइड जीरो होगी तो आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएंगी नहीं। लेकिन कभी ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, क्योंकि 6 या 7 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम आएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी हो गई। मैंने जीरो इसलिए लिया सिर्फ क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है। तो पहले मैंने स्टेप बोली थी आपको कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसीलिए हमको इसको चेंज करने का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में है तो डायरेक्ट लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल, गिवन इक्वेशन इज, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड को जीरो रखना है। एक्चुअली यहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो है ही, इसलिए उसको जीरो रखने का कुछ काम नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको y को उधर शिफ्ट करने के बाद जीरो हो गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका यूज करके हमको निकालना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो आपके पास एक फार्मूला है, जैसे कि इक्वेशन अगर इस टाइप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो इसका यूज करके आपको इसके रूट्स निकाल सकते हैं, या आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये इक्वेशन कैल्सी में डालना है। कैल्सी में अगर आप इनपुट करने के बाद आपको इसके डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करता हूँ, एक तो इस मेथड से निकालेंगे, या यहाँ पे एक दूसरी भी मेथड होती है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, उसका यूज करके भी हम इसके रूट्स निकालने हैं। तो मिडिल टर्म के मतलब हर प्रॉब्लम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, कौन सा प्रॉब्लम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व होगा, वो यहाँ पे मैं बताता आपको। तो आपको क्या करना है, ये इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट देखना है। तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 6, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू 1 इज 6। और मिडिल टर्म कौन सी है, 5। आपको अभी ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर मिलेगा, और उसको अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो हमको ये आंसर मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर आप फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो। तो अगर मैंने 3 इंटू 2 कंसिडर कर दिया तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर है कि जिसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ गया और ऐड करने के बाद 5 हो गया। और अगर आपको ये कुछ करना नहीं है तो कैसे का डायरेक्ट यूज करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी स्क्वायर प्लस, अभी जो 5d है ना, 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 2, तो मैं इसको इस टाइप में लिखता हूं, 2d 3d प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अभी इसको हम दो पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर और ये दो पेयर। तो पहले पेयर में से मुझे d कॉमन मिलेगा, तो यहां पर आएगा d प्लस 2, और दूसरे में से 3 कॉमन मिलेगा, तो यहां पर भी आएगा d प्लस 2। तो फैक्टर निकालने के लिए हम आपको इस कंडीशन में हर बार एक ब्रैकेट सेम मिलेगा ही। अगर इस टाइप का ब्रैकेट नहीं मिला है तो एक तो आपका उसके फैक्टर उस टाइप से आएंगे नहीं, या अगर आएंगे तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो हम d प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर देंगे और रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगे, d प्लस 3। तो यहाँ पे मुझे d प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल गया, तो d की वैल्यू हो गई -2, और d प्लस 3 इक्वल टू 0 मिल गया, तो d की वैल्यू हो गई -3। अभी इसके बाद जो रूट होंगे, और मैंने बताया था आपको कि जितना इक्वेशन का ऑर्डर है उतने रूट्स होंगे। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो रूट्स भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे दोनों रूट्स में देखेंगे आप, तो यहाँ पे i नहीं है, मतलब ये रियल रूट्स है,
एंड दोनों इसमें अलग अलग रूल्स है, मतलब -2 नहीं है या -3 भी नहीं है, एक -2 है एक -3 है, मतलब दोनों रूल्स क्या है, इसका नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म मैंने आपको बोला था, क्या रखना है आपको याद, c e⁻mx। कितने रूल्स है, 2 रूल्स है, तो 2 बार लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दो। दोनों अलग अलग है तो एक को C1 बोल देंगे, इसको C2 बोल देंगे, और एक को बोलेंगे हम M1, एक को बोलेंगे M2। तो आपको इसे क्या करना है, M1 और M2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो M1 की वैल्यू कितनी है, -2, और M2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे आएगा C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले -3 रखा और बाद में -2 रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अभी एक्चुअली इक्वेशन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू क्या रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 0 ही है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब किस में है, डिफरेंशियल इक्वेशन y में है, तो आपको y का आंसर मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻3x। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत ही इजी है, और यूनिट खत्म होने तक आपको ये मेथड आपको याद रखना ही है। कुछ और एग्जांपल लेंगे हम, एक और एग्जांपल लेंगे, सॉल्व d2y/dx² -6 × dy/dx + 9y = 0। अभी इस एग्जांपल में देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो हमारा पहला काम ये है कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अभी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दे देंगे। सपोज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखना है यहाँ पर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो d आएगा, सेकंड डेरिवेटिव है तो d² आएगा, और थर्ड डेरिवेटिव है तो d³ आएगा। तो यहाँ पर कितना है, सेकंड डेरिवेटिव है तो इसको लिखेंगे हम d²y। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो dy, और यहाँ पर रहेगा 9y = 0। y को कॉमन लेंगे, d² -60 + 9 × y = 0। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, सॉल्व करना है, मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ही नहीं है। तो ऑलरेडी ये 0 है तो सिर्फ y को उधर शिफ्ट कर दो, तो d² -6d + 9 = 0। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अगर रूट्स निकालने की मैंने आपको मेथड बताई है, वो मेथड एक बार चेक कर लेंगे हम। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो उसका प्रोडक्ट हो गया 9, और यहाँ पर -6 है, -6 है। तो ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 9 होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -6 रहेंगी। तो अगर मैं -3 और -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 9 हो जाएगा, और -3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस टर्म को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कैल्सी तो है, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो d² -6d को कैसे लिखेंगे, -3d + 9 = 0। ये एक पेयर d को कॉमन ले लेंगे, d -3, और यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये माइनस आ गया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, d -3, और दूसरा ब्रैकेट भी क्या आएगा, d -3। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 3। अभी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रूट्स तो रियल है क्योंकि i नहीं है, और दोनों रूट्स सेम भी है, मतलब यहाँ पे इक्वल भी हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 फंक्शन लिखने हैं आपको, बराबर। यहाँ पर इसको मैं c1 बोलूंगा, इसको c2 बोलूंगा, और उसका ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो m और m की वैल्यू सेम ही है, मतलब ये m1 बोलेंगे आप तो ये भी m1 हो जाएगा। तो ये और ये तो सेम हो गया है, तो सेम होने के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ x देना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो गया, c1 e⁻3x + x × c2 e⁻3
3x। तो अगर आप c1 प्लस एक्स c2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टू द पावर 3x को कॉमन लेने के बाद। अगेन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा फिर? कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू y में इक्वेशन तो y इक्वल टू CF प्लस PI। PI तो 0 है तो CF ही आंसर आएगा। तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स c2 e टू द पावर 3x। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। दोनों प्रॉब्लम मैंने रियल पे लिए है। पहले कंडीशन में पहले केस का यूज हुआ है रियल एंड डिफरेंट, और सेकंड प्रॉब्लम में सेकंड केस यूज हुई है रियल एंड इक्वल। तो सेम इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम भी कंसीडर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना है। नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर दूंगा कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, सिंबॉलिक फॉर्म इज सेकंड है तो डी स्क्वायर, फर्स्ट है तो डी 5, और तीनों में से y तो मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको डी स्क्वायर 4d प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको वैसे लिखना है जैसे मैंने बताया आपको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज वन नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड एज 2 एंड राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां तक आ गए हम। इसके बाद अगेन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है? 2 है। तो आपको अगेन कितने रूट्स आएंगे? 2 ही रूट्स आएंगे। वो कैसे यूज करेंगे हम? अगर यहाँ पे मैंने 5 लिया और यहाँ पे 1 है तो 5 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 5 है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 4 है, कौन से हो गए? और अगर होने के बाद आपको ब्रैकेट भी सेम आना चाहिए। तो अगर आप 5 और 1 लेंगे और 5 माइनस 1 लेंगे तो ब्रैकेट सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपके पास फिर अभी 2 मेथड है। एक तो आपकी कैलसी की मेथड है, अदरवाइज मैंने जो आपको फार्मूला दिया था कि अगर इक्वेशन इस टाइप का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2c। मैं यहाँ पर ये यूज करूंगा फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो इसीलिए हमको x का आंसर मिला है। यहाँ पर इक्वेशन d में है इसीलिए हमको d का आंसर मिलेगा। और d स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा? a। d का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? b। और कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी? c। मतलब यहाँ पे मुझे अगर d निकालना है तो मेरा रिजल्ट आएगा माइनस b। b मतलब मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी है? 4। तो ये हो गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब मिडिल टर्म ही है b। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 4। ए मतलब डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। और सी मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 5 अपॉन 2c। ये तो 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे। -4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा? ये 16 और ये आएगा 20। 5 इंटू 4 इज 20 अपॉन 2। सो डी इक्वल टू मिल गया हमको -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ -4 आएगा अपॉन 2। इसको कैसे लिखेंगे हम? अंडर रूट ऑफ 4 तो आपको मालूम है 2 है, और अंडर रूट ऑफ -1 कितना रहता? दैट इज i अपॉन 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -2 प्लस माइनस i। 2 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये इस फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट्स। और एक प्लस है एक माइनस है, मतलब 2 रूट्स ऑलरेडी यहाँ पर हो गए और हमारा इक्वेशन के ऑर्डर 2 ही है, मतलब यहाँ पे 2 रूट्स आपको मिल गए। तो हमको क्या करना है? अभी सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या होगा? अभी कंप्लीट सॉल्यूशन ही होगा, दैट इज y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आएगा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है? हमारे पास फार्मूला है e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स। तो e टू द पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2। c1 cos बीटा कितना है? बीटा i का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू एक्स एक्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हो गई
तो ये कंडीशन हो गई कि आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स है, मतलब तीसरी केस हो गई आपकी कि रूट्स तो आपको आ गए लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो किस टाइप से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फोर्थ जो केसेस है वो आपको इस टाइप से करनी है, वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे, लेकिन जनरली उस टाइप का प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं है। अगर कुछ आगे प्रॉब्लम तो मैं वो प्रॉब्लम वहां पे कंसिडर कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम और लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो पहला प्रॉब्लम दिखा उसमें सिर्फ रूट्स रियल है, सेकंड प्रॉब्लम में रूट्स रियल है, थर्ड प्रॉब्लम में रूट्स कॉम्प्लेक्स है। कोई प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर रूट्स रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब वहां पे मिक्स रूट्स मिलेंगे आपको, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर भी हो सकती है या रियल रूट्स भी हो सकते हैं। तो उस टाइप का प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है वो एक बार एक प्रॉब्लम में हम देख लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज डी क्यूब प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको वैसे सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो सिंबॉलिक फॉर्म तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं आपको, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, बाद में लिखेंगे हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, डी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है क्यूबिक इक्वेशन, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास रूट्स निकालने के फार्मूला कौन सा है, कैलसी में तो आपको निकालना ही है, तो आपको वो डायरेक्ट 3 रूट्स दे देगा। अदरवाइज आपको ओरली निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो स्प्लिट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट इज अ फार्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 1 क्यूब मतलब 1, तो इसको ए और इसको बी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी प्लस 1, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर डी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो आपको डी इक्वल टू तो -1 मिल गया, एंड डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी एक रूट्स मिल गया और यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलेंगे। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने जो पिछले प्रॉब्लम में लिया था फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस बी मतलब मिडिल टर्म 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस 4ac, ए भी 1 है सी भी 1 है तो 1 ही आएगा, अपॉन ट्वाइस ए। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 1 इज 4, 1 माइनस 4 इज -3 अपॉन 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 मतलब i, तो ये हो गया √3i अपॉन 2। ठीक है, तो हमको डी इक्वल टू एक -1 मिल गया, और यहां पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, y विच इज इक्वल टू रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि इधर की साइड तो 0 है। अभी यहाँ पर देखना है आपको, पहला जो रूट्स है वो रियल है और दूसरा जो रूट्स है वो है पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर आपको दोनों कंसेप्ट यूज करना है। तो पहले हम रियल के बारे में सोचेंगे। तो रियल के लिए फंक्शन किस टाइप का रहता है, c e टू द पावर mx, इस टाइप का है। कितने बार लिखना है आपको, जितने रूट्स है उतने, लेकिन रियल रूट्स हमारे पास कितना है, एक ही है, तो हमें एक ही बार लिखेंगे, तो इसका काम यहां पर हो गया। प्लस दूसरा क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कौन सा फार्मूला है, e टू द पावर अल्फा एक्स सी कॉस बीटा एक्स प्लस सी साइन बीटा एक्स, यहां पर भी एक ही पेयर है। अभी एक्चुअली यहां पर सी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको सी को चेंज करना है, तो ये पहला सी को C1 बोलूंगा मैं, इसको C2 बोलूंगा और इसको C3 बोलूंगा। अभी यहां पर हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, तो C1 पहला रियल के लिए कितना है -1 प्लस C2 e टू द पावर अल्फा कितना है, अल्फा मतलब रियल पार्ट -1/2 C2 कॉस बीटा कितना है √3/2, और ये हो गया y।
तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में आपको रियल रूट्स भी था और इमेजिनरी रूट्स भी था। तो रियल रूट्स के लिए हमने रियल का कंसेप्ट यूज कर दिया और इमेजिनरी रूट्स के लिए हमने इमेजिनरी का कंसेप्ट यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हमको हमारे पास जो केसेस है पर्टिकुलर इंटीग्रल के, तो उसका यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इजीली निकाल सकते हैं। और एक्चुअली जो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं। तो एग्जाम का जो प्रॉब्लम होगा वो रहेगा हमका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो इससे अलग कुछ भी नहीं है, यूनिट एन होने तक आपको यही मेथड यूज करनी है। इसीलिए मैं अभी इसके बाद जो प्रॉब्लम है उसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसका फायदा ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 या 3 मार्क तो उसको मिलेगा ही, क्योंकि 6-7 मार्क का अगर प्रॉब्लम है तो उसको 2 मार्क और 5 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क ऐसे उसको वेटेज रहेगा। तो अगर आपको 2 प्रॉब्लम आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आता ही नहीं है कैसे निकालना है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम के आप अगर सीएफ निकाल कर रख देते हैं तो आपको 4 मार्क तो वहां पे मिल ही जाएंगे पूरे प्रॉब्लम में, 2 प्रॉब्लम मिलाकर। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको ये याद रखना है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंबाइन करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल से और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों सॉल्व, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मेथड तो सेम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की मेथड अलग अलग है। वो डिपेंड करेगा कि वो जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है उसका नेचर क्या रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप जो हमारा डिस्कशन फोरम है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।